آداب، سیڈ نیوز کے ساتھ میں محمد شہباز۔ نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ اب کہاں جائیں؟ شام میں زلزلے سے متاثرہ ڈیم ٹوٹنے سے گاؤں زیر آب۔ شام کے شمال مشرقی علاقے اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں اور درجہ حرارت -4 ڈگری تک گر گیا۔ امریکہ نے 40,000 فٹ بلندی پر اڑنے والی ناقابل شناخت شے کو مار گرایا۔ متحدہ عرب امارات نے شام اور ترکی کے زلزلے زدگان کے لیے 640 ٹن امدادی سامان 22 طیاروں سے پہنچایا۔ امداد کی فراہمی کا سلسلہ ہے جاری۔ دہلی کی ایل جی نے عام آدمی پارٹی کے حمایت یافتہ 2 افراد کو بجلی ترسیلی کمپنیوں کے بورڈ سے ہٹا دیا۔ مسلمان باہر سے نہیں آئے، ہندوستان جتنا مودی اور بھاگوت کا ہے اتنا ہی میرا ہے، محمود مدنی کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شام میں پیر کو آنے والے زلزلے سے متاثر ہونے والا ڈیم اچانک ٹوٹ گیا، جس کے نتیجے میں ادلیب کا ایک گاؤں صفِ ہستی سے مٹ گیا۔ عرب نیوز کے رپورٹ کے مطابق ہفتے کے آغاز میں ترکیہ کے جنوبی اور شام کے شمالی حصے میں آنے والے زلزلے نے بھی گاؤں کو متاثر کیا تھا۔ تاہم اب دریاؤں پر بندھے باندھ ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کے گھر ڈوب گئے اور ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں گھروں کو چھوڑنا پڑا۔ اس علاقے کے لوگ قریبی زیتون کے باغوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گاؤں زلزلے کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا اور لوگوں کو فوری طور پر خیموں اور دوسرے سامان کی ضرورت ہے۔ وہاں کے آباد لوگوں کا کہنا ہے، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، ہمارے گھر ڈوب چکے ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس طرح دریا کے کنارے واقع دوسرے علاقوں کے لوگ بھی اسی پریشانی میں اپنے گھر چھوڑ چکے ہیں، کہیں انہیں بھی ایسے صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خیال رہے کہ پیر کو علیہ صبح 7.8 کی شدت کے زلزلے نے ترکی اور شام کے کچھ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق دونوں ملک میں 24,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہے۔ اگرچہ ترکیہ میں امدادی کارکن پہنچ چکے ہیں اور پہنچ بھی رہے ہیں، تاہم شمالی شام میں بہت کم امداد پہنچ پائی ہے، جہاں تقریباً 45 لاکھ لوگ آباد ہیں اور ان میں سے 90% کا انحصار پہلے ہی امداد پر ہوا کرتا تھا۔ چارلس لیسٹر نے رواں ہفتے ایک غیر ملکی میگزین میں لکھا کہ عالمی برادری نے ترکیہ کے ساتھ خاطر خواہ امداد کا وعدہ کیا ہے، جو بجا بھی ہے، تاہم ہمیشہ کی طرح شامیوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ شام کے شمال مشرقی علاقے میں اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے اور درجہ حرارت -4 ڈگری تک گر گیا ہے۔ شام کے محکمہ شہری دفاع، جس کو وائٹ ہیلمٹ کے طور پہ بھی کہا جاتا ہے، نے الطلول کے علاقے میں اہلکار بھیجے ہیں جو عمارتوں میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ نکاسی کے نظام کو صاف کر کے سیلابی پانی کو گزرنے کا موقع مل سکے۔ محکمے نے جمعہ کو یعنی کل اقوام متحدہ پر شمال مشرقی شام میں اس کے رد عمل کو ناکام بنانے کا الزام بھی لگایا تھا۔ گروپ کے سربراہ رائد صالح نے میڈیا کو بتایا کہ اقوام متحدہ شام کے عوام کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اقوام متحدہ کی جانب سے زلزلے کے بعد بننے والی صورتحال کے حوالے سے مخصوص امداد فراہم نہیں کی گئی۔ امریکہ نے ریاست الاسکا کی فضائی حدود میں موجود ناقابل شناخت اڑنے والے شے کو مار گرایا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر پیٹرک رائڈر کا کہنا ہے کہ امریکی F-22 جنگی طیارے نے UFO مار گرایا، جو ایک چھوٹی گاڑی کی سائز کے برابر تھا۔ غیر معمولی طور پر صدر جو بائیڈن نے UFO کو مار گرانے کے احکامات جاری کیے، جس کا اعلان وائٹ ہاؤس نے کیا۔ چند دن قبل 4 فروری کو امریکی جنگی طیارے F-22 نے ہی ریاست جنوبی کیرولائنا کے فضائی حدود میں اڑنے والے چینی غبارے کو مار گرایا تھا، جو مبینہ طور پر جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اڑن تشتری کا سائز چینی غبارے کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا، تاہم مزید تفصیلات فراہم کرنے سے انکار کیا گیا۔ پینٹاگون نے کہا کہ UFO 40,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا تھا، جو فضائی ٹریفک کے لیے بھی خطرہ کے سبب بن سکتا تھا۔ President of the United States fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command
successfully took down a high-altitude airborne object off the northern coast of Alaska at 1:45 p.m. Eastern Standard Time today within U.S. sovereign airspace over U.S. territorial water. On February 9, North American Aerospace Defense Command detected an object on ground radar and further investigated and identified the object using fighter aircraft. The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. U.S. Northern Command is beginning recovery operations now. U.S. Northern Command's Alaska Command coordinated the operation with assistance from the Alaska Air National Guard, Federal Aviation Administration, and the Federal Bureau of Investigation. We have no further details about the object at this time, including any description of its capabilities, purpose, or origin. The object was about the size of a small car, so not similar in size or shape to the high-altitude surveillance balloon that was taken down off the coast of South Carolina. व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन करबाई ने कहा है कि हमें नहीं मालूम कि ये किस चीज़ की मिल्कियत है, ताहम पेंटागन का कहना है कि ये तैयारा नहीं था। यूएफओ को अलास्का के शुमाल मशरक़ी हिस्से में कनाडा के सरहद के करीब मार गिराया गया और ये शुमाल मशरक़ी समत में परवास कर रहा था। पेंटागन का कहना है कि ये सबसे पहले 9 फरवरी को दिखाई दिया था, जिसकी मज़ीद तहक़ीक़ के लिए जंगी तैयारे भेजे गए। पेंटागन के तर्जुमान ब्रिगेडियर पैट्रिक राइडर ने कहा कि इस मिशन पर अमरीकी पायलट साथ थे, जिन्होंने यकीन दहानी के नाकाबिल शनाख्त चीज़ में कोई इंसान तो मौजूद नहीं। उन्होंने चीनी गुब्बारे के हवाले से बताया कि इसका मलबा काफ़ी हद तक हासिल कर लिया गया है, जिससे चीन की जासूसी की सलाहियतों के बारे में मज़ीद मालूमात सामने आएंगे। Really briefly, can you speak to rumors that there is another Chinese balloon above Alaska or any other parts of U.S. territory that the U.S. shot down? So I can confirm that the Department of Defense was tracking a high-altitude object over Alaska airspace in the last 24 hours. The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. Out of an abundance of caution and at the recommendation of the Pentagon, President Biden ordered the military to down the object, and they did. And it came inside our territorial waters. Those waters right now are frozen, but inside territorial airspace and over territorial waters. Fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command took down the object within the last hour. रूस की मारूफ गुलकारा ज़ेफ़िरा रामाज़ानोवा को यूक्रेन की हिमायत करने और रूसी जंगी ऑपरेशन की मुखालफत करने पर हुकूमत ने गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक रूस की वजारत बराए इंसाफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुलकारा ज़ेफ़िरा रामाज़ानोवा ने खुलकर यूक्रेन की हिमायत की, गैर दोस्ताना ममालिक में कंसल्ट किए, जबकि खुसूसी अक्सरी ऑपरेशन के मुखालफत में बयान दिए और बैरूनी ज़राए से मदद हासिल की। गुलकारा ज़ेफ़िरा रामाज़ानोवा रूस की वस्ती इलाके बशकुरिस्तान में पैदा हुए और सन 1998 से परफॉर्म कर रही हैं। ज़ेफ़िरा रामाज़ानोवा न सिर्फ रूस बल्कि साबिक़ रूसी रियासतों में भी ख़ास शोहरत रखती हैं। वो यूक्रेन के साथ तनाज़े के मुखालफत के हवाले से भी जानी जाती हैं और उनके वेबसाइट पर भी नो टू वॉर यानी जंग से इनकार का नारा दर्ज है। गुलकारा के बारे में इतलात यह है कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद वो रूस छोड़कर फ्रांस मुंतकिल हो गई थी। ताहम इस हवाले से ज़ेफ़िरा रामाज़ानोवा के जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। गैर मुल्की एजेंट करार दिए गए रूसियों को अक्सर पुलिस तलाशी और दीगर सज़ाओं का निशाना बनाया जाता है। मुतअद्दिद रूसी शहरी पिछले 1 साल में मुल्क छोड़ चुके हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात 24,000 से तजावुज़ कर गई है। अंताकिया में 120 घंटों में 3 भाइयों को मलबे से ज़िंदा निकाल लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक तुर्किया में ज़लज़ले से अमवात बढ़कर 24,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि तुर्किया में ज़लज़ले से ज़ख्मियों की तादाद 80,000 से ज़्यादा है। तुर्क मीडिया के मुताबिक अंताकिया में 120 घंटे के बाद 3 भाई मलबे से ज़िंदा निकाल लिए गए हैं। शाम में ज़लज़ले से अमवात 33,000 से बढ़ गई। ज़ख्मियों की तादाद 5,000 से ज़ायद है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से तबाही का अभी मुकम्मल अंदाज़ा नहीं है। शाम में ज़लज़ले से बेघर अफराद 50 लाख हो सकते हैं। तुर्किया और शाम में मकामी और गैर मुल्की इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी है।
बार्सिलोना के मेयर अदा कोलाउ ने इसराइल के साथ तमाम ताल्लुकात को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जिसमें तल अबीब शहर के साथ मुआहदे की मुअत्तली भी शामिल है। मेयर बार्सिलोना ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को एक ख़त भेजा है, जिसमें उन्होंने इस फैसले से आगाह किया है कि मेयर बार्सिलोना अदा कोलाउ ने इंसानी हुकूक़ की वाज़ेह और मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी पर तनक़ीद करते हुए मुआहदे को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम खामोश नहीं रह सकते। मेयर ने कहा कि यह फ़ैसला किसी भी तरह से यहूदी आबादी के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक नहीं है, यह कौम, बिरादरी या मज़हब पर तनक़ीद बल्कि हुकूमत पर है। खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए छठा इमदादी तैयारा रवाना हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तैयारे में 58 टन इमदादी सामान हैं, जिसमें गर्म कपड़े, कंबल, ख़ीमे, खुश्क राशन और तिब्बी सामान मौजूद है। शाह सलमान की हिदायत पर ज़लज़ला ज़दा इलाक़ों की मदद के लिए रवाना हो गया है, जिसके तहत बड़ी मिक़दार में इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने तुर्की और शाम में ज़लज़ले मुतासिरीन की मदद के लिए कौमी एहतियात मुहिम का भी आगाज़ कर दिया है। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि गैर मुल्की ड्राइवर शराइत पूरी करने की सूरत में 3 माह तक अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर सऊदी अरब में गाड़ी चला सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महकमे ट्रैफिक से पूछा गया था कि गैर मुल्की ड्राइवर अपने मुल्क के ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर सऊदी अरब में गाड़ी चला सकता है क्या? महकमे ट्रैफिक ने जवाब दिया, मैंने वाज़ेह कर दिया है कि ड्राइवर के पेशे पर सऊदी अरब आने वाले वो गैर मुल्की 3 माह तक ममलिकत में गाड़ी चला सकते हैं, जिनके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस हो और रजिस्टर्ड इदारे से ड्राइविंग लाइसेंस का तर्जुमा करा रखा हो। उन्हें लाइसेंस पर दर्ज ज़ुमरे के मुताबिक गाड़ी चलाने की इजाज़त होगी। मुत्तहिदा अरब इमारात ने शाम और तुर्किया के ज़लज़ले ज़दगान के लिए 660 टन इमदादी सामान 22 तैयारों से पहुंचाया है। इमदाद की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। अब तक 22 तैयारों से इमदादी सामान दोनों मुल्कों को भेजा जा चुका है। इनमें से 7 तैयारे शाम भेजे गए हैं, जिन पर खाने पीने की अशिया के अलावा 515 ख़ीमें मौजूद हैं। इमारात ने तैयारों से फील्ड अस्पताल और रेस्क्यू टीमें भी रवाना की हैं। तुर्किया के लिए जो फील्ड अस्पताल भेजा गया है वो इस्लाहिया नामी इलाकों में काम करेगा। ये 50 बिस्तरों, लेबॉर्ट्री, फार्मेसी, PTO पर मुश्तमिल है। दर असना माओ और बच्चों की निगहदाश्त करने वाली सुप्रीम कौंसिल की चेयरपर्सन शेख फातिमा बिन मुबारक ने इमदादी अमल के लिए 50 मिलियन दिरहम फराहम करने की हिदायत जारी की है। शेख फातिमा को कार खैर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने पर उम्मुल अमारात कहा जाता है। अमारात की 16 फलाही इदारे इमदादी अमल में शामिल हैं। ईरान में हुकूमत के ख़िलाफ़ 6 माह से जारी शदीद एहतजाज के बाद पासदारान इनक़लाब फ़ोर्स में मशकूक और उलझन फैलने का इंकशाफ हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़ोर्स के अहलकार अपनी तनख्वाहों की वजह से परेशान हैं। ज़राई का कहना है कि इनकी तनख्वाहें लिबनान के हिज़्बुल्लाह के मुकाबले में हम मुनसिबों से 4 गुना कम हैं, जिसको मशरिक़ वस्ता के सबसे मजबूत प्रोसिक्यूटर समझा जाता है। ईरान की इखलाकी पुलिस की हिरासत में 22 साला खातून महसा अमीनी, जिनको दुरुस्त तौर पर हिजाब न ओढ़ने पर गिरफ़्तार किया गया था, कि हलाकत के बाद मुल्क के तवीलो गर्ज में एहतजाज फूट पड़ा, जिसको रोकने के लिए पासदारान इनकलाब ने कई ज़ालिमाना तरीक़े इख्तियार किए। इस क्रैकडाउन में 528 आम शहरी हलाक हुए, जबकि हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार किए गए। मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में 70 के करीब फ़ोर्स के अहलकार भी हलाक हो गए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG VK सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के तर्जुमान जास्मीन शाह और आप के रुकन पार्लियामेंट नारायण दास गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को बिजली तरसीली कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया है। LG ने इल्ज़ाम लगाया कि इन दोनों को गैर कानूनी तौर पर उन कंपनियों के बोर्ड पर सरकारी नुमाइंदों के तौर पर मुकर्रर करके और इसके बदले में फ़ायदा उठाकर 8,000 करोड़ रुपए की मदद की गई। अब BSAS यमुना, BSAS राजधानी और नौ दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन
कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास डिस्कॉम के बोर्ड्स में फाइनेंस सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी और एमडी दिल्ली ट्रांसको होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इख्तलाफ राय के तहत ये मामला सदर को भेज दिया है और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों को फौरी असर से बोर्ड से यानी फौरी तौर पर बोर्ड से हटाने का हुक्म दिया है। एलजी का इल्ज़ाम है कि ये दोनों लोग दिल्ली के लोगों के मफाद में चौकस रहने के बजाय बिजली तरसीली कंपनियों के फैसलों में हिस्सा ले रहे थे और उनके फैसलों में सहूलतकारी कर रहे थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में ज़मीन के धंसने से मुतासिर होने वाले लोगों के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। गुज़िश्ता 1.5 माह से तहसील अहाते में बैठकर एहतजाज कर रहे लोग शहर के सड़कों पर हाथों में मशालें लेकर उतर आए और जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने उत्तराखंड के बीजेपी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों का कहना है कि ज़मीन के कटाव की वजह से उनकी इमारतों और ज़मीनों को नुकसान पहुंचा है, लिहाजा इसका मुनासिब मुआवजा दिया जाए और मुस्तकिल बहाली की जाए। धरने पर बैठे लोगों का इल्ज़ाम है कि हुकूमत इस मामले में गुज़िश्ता 1.5 माह से टाल मटोल कर रही है। मुज़ाहिरीन का कहना है कि हुकूमत आफत ज़दा लोगों को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। 1 माह से ज़ायद का अरसा हो गया लेकिन अभी तक मुतासिर अफराद की बहाली नहीं हुई और वो राहती कैंपों में वक्त गुजार रहे हैं। जमात-ए हिंद का 34वां इजलास दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हो गया है, जिसकी सदारत जमात-ए हिंद के सरबराह मौलाना मोहम्मद महमूद मदनी कर रहे हैं। जमात-ए हिंद के सरबराह महमूद मदनी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों का मसाला उठाया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान इतना ही महमूद का है जितना ही पीएम नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के केसेस बढ़ रहे हैं। जमात-ए-हिंद के सरबराह ने कहा कि हिंदुस्तान मुसलमानों का पहला मादरे वतन है। ये कहना कि इस्लाम एक मज़हब है जो बाहर से आया है बेबुनियाद है। इस्लाम तमाम मज़ाहिब में सबसे कदीम मज़हब है और हिंदी बोलने वाले मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान बेहतरीन मुल्क है। प्रोग्राम में मदनी ने इस्लामोफोबिया और नफ़रत अंगेज़ तकारीर। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। अब कहाँ जाएं? शाम में ज़लज़ले से मुतासिरा डैम टूटने से गांव ज़ेरे आब। शाम के शुमाल मशरिक़ी इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में और दर्जे हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। अमेरिका ने 40,000 फीट बुलंदी पर उड़ने वाली नाकाबिले शनाख्त शय को मार गिराया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने शाम और तुर्की के ज़लज़ले ज़दगान के लिए 640 टन इमदादी सामान 22 तैयारों से पहुंचाया। इमदाद की फराहमी का सिलसिला है जारी। दिल्ली की एलजी ने आम आदमी पार्टी के हिमायत याफ्ता 2 अफराद को बिजली तरसीली कंपनियों के बोर्ड से हटा दिया। मुसलमान बाहर से नहीं आए, हिंदुस्तान जितना मोदी और भागवत का है इतना ही मेरा है, महमूद मदनी का बयान। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।